سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لالچ بہت بری بلا ہے۔ یہ ہم اپنے بزرگوں سے سنتے آئے، بچپن سے سنتے آئے کہ لالچ بہت بری بلا ہے، بہت بری چیز ہے۔ لالچ نہیں کرنا۔ کبھی کسی نے اس پر تدبر کیا، غور کیا کہ یہ لالچ ہے کیا، اور ہے کیا؟ ایک تو یہ پہچان، آئیڈینٹیفیکیشن، اور پھر یہ بری بلا کیوں ہے، یعنی اس کو بری بلا کیوں کہا گیا۔ یہ بہت ہی غور کرنے والی بات ہے، غور طلب بات ہے۔ ہم کہتے تو ہیں کہاوتن محاورتن بھئی لالچ بڑی بری بلا ہے، لیکن حقیقت میں شاید ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے، ابھی لالچ سے واقفیت نہیں ہے ہماری، یا اس کو بری بلا سمجھ کر ابھی ہم نے دھتکارا نہیں ہے، چھوڑا نہیں ہے، خوش دلی سے اس کو سینے سے لگا کے رکھا ہوا ہے اور اس پر عمل کرتے ہیں، اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ بھائی کیسے؟ مثال کے طور پر اگر کسی بیوہ کا حق ہو اور وہ بیوہ ہماری بہن ہو یا ہماری بیٹی ہو یا کسی بھی رشتے سے وہ ہماری کچھ لگتی ہو، تو ہم اس کے حق کی جو جائیداد ہے، جو پراپرٹی ہے، اس کو دینے میں نخرے کرتے ہیں، ہینگ اراؤنڈ رہتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں، کہیں نہ کہیں کوشش کرتے ہیں کہ مجھے کچھ مل جائے، بس اس کا حصہ بھی تھوڑا سا میری طرف آ جائے۔ پراپرٹی ہے، لینڈ ہے، تو چلو تھوڑا سا 2-4 گز اور اپنے حصے میں کور کر لو، اس کا حصہ کیا فرق پڑتا؟ وہ بوڑھی ہے، اکیلی ہے، وہ کیا کرنا ہے، اس نے کیا کرنی ہے پراپرٹی، اس کا کون ہے آگے پیچھے؟ یعنی اس کا حق دینے میں ہم زیادتی کرتے ہیں۔ ہم سے مراد ہم سب کو اپنا محاسبہ خود کرنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں بھی ان میں شامل ہوں۔ کوئی یتیم بچوں کا حق ہے تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں، کوئی باس ہے، مالک ہے، جس کے لیے میں کام کرتا ہوں، تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ کیسے ڈنڈی مارتے ہیں؟ بھئی جتنا کام مجھے کرنا چاہیے اتنا نہیں کرتے، ٹائم چرا کے اپنے کاموں میں، دوسرے معاملات میں زیادتی کرتے ہیں۔ باس آ گیا تو اٹھ کے بھاگ بھاگ کے کام کر لیا، باس چلا گیا تو پھر بیٹھ گئے، ہڈ دھرمی کرتے ہیں۔ جتنے ٹائم کی، جتنی تنہا کی کمٹمنٹ ہے، اس سے زیادہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ باس کو پتہ نہ چلے، چلو ادھر سے بھی ذرا پیسے بنا لو، باس کو پتہ نہ چلے ادھر سے بھی بنا لو۔ لالچ کرتے ہیں ہم کہ میں پیسے زیادہ بنا لوں، اور محنت سے جان چھڑاتے ہیں، محنت کم کرنی پڑے، وہی کام، وہی بزنس جاب کر کے پھر اپنے طور پر، اپنے سورس سے وہی بزنس، وہی کاروبار ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ لالچ بری بلا ہے یہ ہم کہتے ہیں، پر لالچ کرنا چھوڑتے نہیں ہیں۔ کسی کا بھی مال، کوئی کاروباری لین دین ہے، کوشش ہوتی ہے کہ اس کا مال دبا لو، کوشش ہوتی ہے کہ اس کے پیسے روک لو، کوشش ہوتی ہے کہ بھی سارا فائدہ خود اٹھا لو، اس کے ہتھے نہ کچھ آئے۔ پراپرٹیوں کے معاملے میں خاص طور سے لوگ بہت زیادہ زیادتیاں کرتے ہیں۔ کرائے پر ہی لی ہو پراپرٹی تو مالک بننے کی کوشش کرتے ہیں، لالچ کرتے ہیں کہ بس کسی طرح یہ میں لینڈ لارڈ سے ہتھیا لوں، کرایہ بھی نہ دینا پڑے، تھوڑا دے دوں، ہے جی، ڈنڈی مار جاؤں، اس میں یہ نہ کرنا پڑے، وہ نہ کرنا پڑے۔ اور پھر اگر کچھ عرصہ زیادہ ہو گیا ہے تو پھر کوشش ہوتی ہے کہ اچھا میں مالک بن جاؤں۔ مالک چاہے کورٹ کیس کر دے، چاہے کوئی اور دیوانی دعویٰ کر دے،
हमारी कोशिश होती है कि ये मैं मार जाऊं, खा जाऊं, पी जाऊं। लालच बुरी बला है, ये हम कहते हैं, पर इस पर अमल नहीं करते। हर चीज में लालच करते हैं। भाई जो आपका हक है वो लें, जो किसी बेवा का है उसे दें, आपके लिए इसी में खैर और बरकत है। मिसाल के तौर पर अगर मैंने ज्यादती कर दी, मैंने वो हक खा लिया, तो क्या ख्याल है जो मेरे हिस्से में आएगा वो मेरे पास रहेगा? नहीं, वो मेरे पास भी नहीं रहेगा। कैसे नहीं रहेगा? हाँ, क्योंकि अगर अल्लाह तबारक व तआला मेरे माल में खैर और बरकत रख दे, तो जितना उसने मुझे दिया हुआ है, जितना नवाजा है उसने, वो मेरे लिए मोर देन एनफ है। और अगर मेरी लालच की वजह से, मेरी बेईमानियों की वजह से, मेरी धोखाधही की वजह से अल्लाह मेरे माल से खैर और बरकत उठा ले, तो फिर मेरे पास हजारों क्या, लाखों क्या, करोड़ों भी होंगे ना, तो वो खत्म हो जाने, और बनेगा भी कुछ नहीं। कि मैं सोचूं ना, अच्छा यार मैंने धोखा तो दिया, माल तो ले लिया, अब ये मेरे किसी काम आ जाए, काम भी नहीं आता। जो लोग बेईमान होते हैं, चोर होते हैं, वो 10 बंदों को ठग के, बेईमानी करके, चोरी करके जो माल इकट्ठा करते हैं, कोई आगे उनको ठग के माल सारा उड़ा के ले जाता है, वो फिर खाली के खाली बैठे रहते। तो खुदारा अपनी कब्रों को जहन्नम का घड़ा ना बनाएं, अपने लुक्मे को हराम ना करें, ये लालच करना छोड़ दें। अगर अननोइंगली भी आप लालच कर रहे हैं तो भी छोड़ दें, और अगर जानबूझकर कर रहे हैं तो भी छोड़ दें। भाई मैं लालच करके पैसा इकट्ठा करूं, माल जायदाद प्रॉपर्टी इकट्ठी कर लूं, क्यों करूं? अपने लिए? मेरे लिए अजाब बन जाएगा। अपने बच्चों के लिए वो बेकदरी करेंगे, क्यों? उन्होंने तो मेहनत ही नहीं की, आप उनके लिए विरसा छोड़ दे। और अगर औलाद खराब निकली, आपको दफन बाद में करेंगे, हिस्से पहले बांटेंगे। लिहाजा अपनी औलाद के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, इवन अपने माँ बाप के लिए भी खुदारा कोई बेईमानी ना करें, कोई धोखाधही ना करें, कोई लालच, कोई तमा, कोई हवा हिरस ना करें। हम अपनी कब्रें भारी कर लेते हैं और माल दूसरे खा जाते हैं। हम अपने खाते बुराइयों से, गुनाहों से, हक तलफी से खाते खराब कर लेते हैं, और उस माल को एंजॉय कोई और करता है। खुदारा ना करे। लालच बुरी बला है, इसको अंडरस्टैंड करें। और अगर आप सब्र करने वालों में हैं, शुक्र करने वालों में हैं, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपको बहुत नवाजेगा आपके सब्र करने पर। और अगर आप शुक्र करने वाले हैं तो अल्लाह ने जो भी आपको दे रखा है उसमें खैर और बरकत रख देगा, उसको बढ़ा देगा आपके शुक्र करने पर। लालच करने की जरूरत नहीं है। भाई मैं लालच करके क्या कर लूंगा? ना मिकदार से ज्यादा, ना वक्त से पहले, फिर मेरा लालच करने का फायदा? जो मेरे मुकद्दर में है वो तो मुझे मिल के रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरी रोजी, मेरी रोटी, मेरा हक कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं मार सकता। जो मुझे मिलना है मिल के रहेगा। हाँ, अगर मैंने जायज रास्ता इख्तियार किया तो मेरे लिए खैर है, भलाई है, जजा है। मिलना वही है जो मेरे मुकद्दर में लिखा हुआ। और अगर मैंने नाजायज रास्ता इख्तियार किया तो मिलना तो वही है। हाँ, उसके साथ साथ मेरे लिए
सजा, अजाब और मुश्किलें खड़ी जरूर हो जाएंगी। क्यों? रास्ता गलत इस्तेमाल किया। अगर मैं चाहूं कि मैं अपनी रोजी रोटी आईटी के काम से कमाऊं तो अल्लाह पाक मुझे आईटी के काम से बिजनेस दे देगा, इनकम दे देगा। अगर मैंने अपनी रोजी रोटी के लिए कोई मुलाजमत का शोबा चुन लिया तो अल्लाह मुझे वहां से रोजी रोटी देगा। अगर मैंने कोई बिजनेस चुन लिया, कोई दुकान, कोई ग्रोसरी की, परचून की, कोई सब्जी की डाल ली, अल्लाह मुझे वहां से रोजी रोटी दे देगा। अगर मैंने कोई तजारत कर ली, अल्लाह मुझे वहां से रोजी रोटी। ये जो रास्ता चुनना है, ये जो दरवाजा चुनना है कि किस दर से मैंने जाके अपनी रोजी कमानी है, ये इसका इख्तियार अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दे रखा है कि जाओ जो रास्ता चाहते हो चुनो। और अगर किसी ने यही रास्ता खराब कर लिया कि अच्छा भी मैं कोई 2 नंबरी करूंगा, मैं कोई मनशियात का कारोबार करूंगा, मैं कोई असले का कारोबार करूंगा, मैं कोई बुराई का, कोई चोरी चकारी का कारोबार करूंगा, मिलना तो फिर भी वही है। लेकिन हम साथ ही साथ सजा के मुर्तकब भी हो गए। वो सजा चाहे ज़ाहरी दुनिया के कानून की हो या वो बाद में आने वाले वक्त में अजाब की शक्ल में हो। रास्ता गलत चुनने पर हम सजा के हिस्सेदार बन गए। नहीं जी नहीं, वो रास्ता गलत चुनने पर तो जनाब बड़ा पैसा आया। ओ भाई, वो पैसा आपको फिर भी मिलना था, वो अल्लाह पाक ने आपको देना था, बस रास्ता आपने गलत कर लिया। ये इल्यूजन है, ये कूड़ है, ये फरेब है, ये धोखा है जो हम अपने आप को देते हैं। अच्छा चलें फॉर आर्गुमेंट से इस बात को ऐसे समझते हैं, भाई मुझे ज्यादा पैसे आ गए, मैंने धोखे से कमा लिए, तो इजी कम इजी गो, जैसे वो आसानी से आए हैं वैसे ही चले जाने। अच्छा नहीं भी नहीं, मैं बड़ा दाना आदमी हूं, मैं तो जनाब पक्का हूं बड़ा, अपने पैसों को जाया नहीं करता, फजूल खर्ची नहीं करता, तमाशबीनी शकीनी नहीं करता। ओके फेयर इनफ। फिर कोई ना कोई डैमेज ऐसा पड़ जाएगा, कोई एक्सीडेंट हो गया, नुकसान हो गया, कोई माल पड़ा हुआ था, कोई स्टॉक रखा हुआ था, जाया हो गया, कोई कुदरती आफत, कोई बला आ गई, कोई बच्चा बीमार हो गया, कोई फैमिली मेंबर किसी को खुदा न खास्ता कैंसर ही हो गया, क्या होगा? वही माल जो आपने नाजायज रास्ते से कमाया था वो इस तरह के रास्तों में खर्च हो जाएगा, नुकसान की शक्ल में, खसारे की शक्ल में, किसी वबा बला की शक्ल में, किसी नुकसान परेशानी की शक्ल में, किसी बीमारी, किसी आफत की शक्ल में निकल जाएगा। वो आपके पास टिकना नहीं है। तो फिर बुराई की, लालच की, बुरा रास्ता इख्तियार किया, अजाब में भी पड़ गए। अब वो दुनिया में भी, कब्र में भी, हशर में भी अजाब अजाब और अजाब। तो भाई क्यों ऐसा काम करें? किसी का मकान था, मैंने कब्जा कर लिया, किसी का प्लाट था, मैंने कब्जा कर लिया, अब मैं कब्जा ग्रुप बना हुआ हूं, मैं उसको दे नहीं रहा उसके असल मालिक को, उसके हकदार को। कभी कानूनी पेचीदगियां पैदा करता हूं तो कभी ज़ाहरी गुंडागर्दी से, ताकत से उसका बस नहीं चलने दे रहा। मालिक तो मालिक है। अगर कोई मालिक किसी को कोई एक बाग लगाए और किसी को माली रख ले वहां पे, अच्छा भाई ये इधर आ, ये बाग है, इसको पौधों को तूने पानी भी देना है, नए पौधे भी लगाने हैं, जो फल फूल लगे वो उतार के लोगों में देने भी हैं, बांटने भी हैं, बेचने भी हैं, खुद भी खाने पीने, मुस्तफीद होना। और एक खास वक्त के बाद वो कहे जी कि मालिक ने तो क्या किया जनाब, उसने तो जमीन लेके मुझे दे दी, ये सारा जो फल फूल लगे हुए हैं, ये जो दरख्त लगे हुए हैं, ये जितना फल आ रहा है, ये मेरी मेहनत है। उसने क्या दिया था? अच्छा भी उस वक्त में उसने, मिसाल दे के बाद, उस वक्त में उसने 1000 रुपए की वो जमीन ली थी, मुझसे 1000 रुपए ले लो, 5000 रुपए ले लो। हालांकि जो मौजूदा वक्त है उसमें हो सकता है वो करोड़ रुपए की हो, मिलियन की हो। तो हम क्या करते हैं कि नहीं उसने तो किए कुछ नहीं। दुकान में भी ऐसे ही कारोबार किया, साझेदारी की, और नहीं उसने तो मेहनत नहीं की, सारी मेहनत तो मेरी है, मैंने इस कारोबार को फैलाया, मैंने इस कारोबार को 4 चांद लगाए हैं।
अब वो हिस्सेदार बना हुआ है। उस वक्त उसने जनाब 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी, अच्छा आज 50 ले लो, चलो बाहर निकलो, तुम्हारा क्या है इसमें। हाय, लालच बुरी बला है। हाँ, अच्छे के लिए, बेहतरी के लिए कोशिश करना कोई बुरी बात नहीं है। आप भी करते हैं, मैं भी करता हूं। हर कोई अच्छा चाहता है, भला चाहता है, खैर चाहता है, कामयाबी चाहता है, लेकिन उसके लिए हमें किसी का हक मारने की जरूरत नहीं है। उसके लिए हमें किसी की जड़ें काटने की जरूरत नहीं है। उसके लिए हमें किसी और की रोजी रोटी पर लात मारने की जरूरत नहीं है। बाबा, अल्लाह से तलब करें और उस पर भरोसा रखें, मेहनत करें, कोशिश करें, अपने आप को अपग्रेड करें एजुकेशन में, स्किल्स में। अल्लाह पाक आप पर मेहरबानी फरमाएगा, आपको हलाल रोटी देगा। अच्छा, एक और बात, बल्कि आखिरी बात, जब हम हराम कमाना शुरू कर देते हैं तो हमारे ताल्लुकात भी हराम हो जाते हैं। यानी जाहिर बात है, अगर मैंने चोरी चकारी शुरू कर दी तो मेरे सारे दोस्त, अजीज, जानने वाले वो सारे चोर ही होंगे। चोर चोरों में बैठेगा जाके। अगर कोई सियासतदान है तो वो सियासतदानों में बैठते हैं जाके। कोई डॉक्टर है तो आप देखें उसका हल्का अहबाब, उसका सोशल लाइफ, सारे डॉक्टर ही होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी सोसाइटी भी खराब हो गई, जिसने बुरा रास्ता इख्तियार किया, सोसाइटी खराब हो गई। दूसरी बात, उसकी औलाद भी खराब हो गई। भाई औलाद कैसे खराब हो गई? औलाद की परवरिश तो वो खुद कर रहा है, बड़ी सख्ती से कर रहा है। नहीं बाबा नहीं, जब उस औलाद के पेट में हराम का नवाला जाएगा, वो औलाद कभी सही रास्ते पर नहीं रहेगी। आप जितनी मर्जी निगहदाश्त कर लें, जितनी मर्जी सख्तियां कर लें, जितने मर्जी डंडे हाथ में पकड़ लें, जब मैंने इसको नमाज सिखानी है, कुरान सिखाना है, मार मार के सिखाना है, नहीं भाई नहीं। ये उतनी देरी है जब वो बिल्कुल छोटे हैं, जरा से होश में आएंगे और कहेंगे बाप बड़ा जालिम आदमी था, इतना मारा, इतनी सख्ती की मुझ पर। औलाद खराब हो जाएगी। क्यों खराब हो जाएगी? हराम नवाला खिलाया। आपके मुलाजमीन आपसे वफादार नहीं होंगे, क्यों? हराम नवाला खिलाया। आपकी बीवी आपसे वफादार नहीं रहेगी, क्यों? हराम नवाला खिलाया। आपके निमक में वो असर ही नहीं होगा, वफादारी वाला, वफा वाला, मोहब्बत वाला। सारे ताल्लुक, सारे रिश्ते खत्म हो गए। आप पैसे की लालच करेंगे, लोग आपके मरने की दुआ करेंगे। बिलीव मी, मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, खुदारा सच कह रहा हूँ, मैंने अपने कानों से सुना। बच्चे दुआ मांगते थे ये बूढ़ा जब मरेगा ना फिर अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। हाय हाय हाय, जिस औलाद के लिए हमने कब्र अजाब बना ली, जहन्नम का गढ़ा बना लिया, वो औलाद फितना है। अल्लाह तबारिक व तआला क्लियरली कुरान पाक में फरमाता है कि माल और औलाद तुम्हारे लिए फितना है, बचो इससे। फितना का लफ्ज इस्तेमाल किया है कुरान पाक में अल्लाह तबारिक व तआला। आजमाइश है, फितना है, बचो इससे, संभाल लो इसको। कैसे संभालते? बेहतरीन तरीका, हलाल कमाएं, हलाल खाएं और अपनी औलाद को भी हलाल खिलाएं, चाहे वो थोड़ा ही हो, चाहे वो सादा ही हो। हमें अपने दस्तरखान पर 7 पकवान पका के रखने की जरूरत नहीं है। अगर मेरी जेब इजाजत नहीं देती तो एक ही खाना बनाएं। प्यार बढ़ेगा फैमिली का, टाइज बॉन्डिंग्स मजबूत होंगी, मोहब्बत अदब कायम रहेगा, वफा होगी खून में, निमक में, और इंशाअल्लाह ताला आपकी लाइफ खुशहाल होगी। नहीं तो क्या होगा? हाय, जब कब्र में छोड़ के चले जाएंगे तो पीछे आपके कोई आपके लिए पाक कलाम पढ़ के साले सवाब करने वाला भी नहीं होगा। क्यों? औलाद तो फितना थी, औलाद को तो हराम माल खिलाया, वो और भी ज्यादा हराम रस्तों पे चल निकले, ना मेहनत की,
ना वफा की, ना अल्लाह राजी किया, ना दुनिया संवरी, ना आखिरत में कुछ हिस्सा रहा। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। इसका बेहतरीन तरीका ये है, ये भी बता दूं, अगर आप में से, हम में से किसी को भी खुदा न खास्ता वो गलती से भी इन बलाओं का शिकार हो गया है, पहली बात तौबा करें, अल्लाह से रुजू करें कि या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे, मैंने जाने अनजाने में जो भी किया अपने महबूब के सदके वसीले से मुझे माफ़ कर दे। पहला काम बुराई को कबूल करना कि हाँ मुझसे गलती, यार ये यहाँ पे मेरे साथ मैंने हक तलफी कर दी। पहली बात, गलती वो नहीं होती जो हम करते हैं, गलती वो होती है जो हम करके मानते नहीं हैं। पहली बात एडमिट करें, दूसरी बात रुजू करें अल्लाह से फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर उस बंदे से या उस बंदी से जिसका आपने हक मारा है। अगर आपके पास उसका हक मौजूद है तो उसके सुपुर्द कर दें। नहीं जी वो तो मैंने बेच दिया, वो तो मैं खा गया, पैसा था मैं जनाब हजम हो गया। रुजू करें, माफी मांगे उससे और वादा करें कि इंशाअल्लाह ताला पहली फुर्सत में कमा के रिसोर्स से, वसाइल से बेचकर या जैसे भी होगा मैं अरेंज करके आपका माल आपको लौटाऊंगा। वादा करें उससे, अहद करें। जब तक आप नियत नहीं करेंगे, वादा नहीं करेंगे, उस वक्त तक अल्लाह पाक की बारगाह से आपके लिए मदद नहीं आएगी। इसलिए वादा करना, नियत करना, अहद करना जरूरी है। फिर पूरी कोशिश करें, एड़ी चोटी का जोर लगा के उसका माल उसको वापस दें। नहीं भी मैंने जिंदगी में कोई किया होगा तो मुझे याद नहीं है, तो फिर तौबा इस्तग़फ़ार, कसरत इस्तग़फ़ार इतनी करें, सदका खैरात इतना करें, अल्लाह की राह में, मस्जिदों में, दीन इस्लाम में इतना खर्च करें और साथ साथ दुआ करते रहें कि या अल्लाह जिन लोगों की भी मैंने कोई हक तलफी की हो, कोई ज्यादती की हो, किसी का माल खाया था, या अल्लाह वो मर गया, ये नेक काम, ये मस्जिद का काम, ये दारुल उलूम का काम, ये सदका जारिया मैं करता हूं उसके नाम से, अल्लाह उसके नामा अमाल में इसका सवाब पहुंचे और रोजे महशर जब उठ के खड़ा हो तो उसका दिल मेरी तरफ से साफ कर देना। क्या होगा? अल्लाह पाक उसके नामा अमाल में भी सारी नेकियां लिखेगा। और चूंकि आपने वो पैसा खर्च किया अल्लाह की राह में, दीन में, मस्जिद में, सदका जारिया के तौर पर, आपको भी पूरा पूरा सवाब मिलेगा। कसरत इस्तग़फ़ार और कसरत सदकात खैरात आपकी उस जो बुराई है, जो गुनाह है, जो अनजाने से सरजद हो गया, जो भूले से सरजद हो गया, जो आपको याद भी नहीं है, अल्लाह पाक उसमें नरमी फरमा देगा और आपका मामला अल्लाह के सुपुर्द वो आपको माफ़ फरमाने की कुदरत रखता है कि आपको माफ़ फरमा दे। अल्लाह पाक आपको, मुझे, हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। याद रखिएगा, इल्म उस वक्त तक फायदा नहीं देता जब तक हम उस पर अमल ना करें, क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, कि ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बुल जलाल मालिकुल कुद्दूस, ये महफिल पाक हम सब के लिए बाइस बरकत, बाइस रहमत, बाइस नजात बना दे। अल्लाह जितने भी हाजरीन, नाजरीन, सामाईन जिन्होंने भी इस महफिल को अटेंड किया, दुआ के लिए हाथ उठाए बैठे हैं, जहां कहीं भी लब से आमीन भी कह रहे हैं, अल्लाह सबकी नेक हाजात, नेक तमन्नाएं, नेक जरूरतें अपने खजाना गैब से पूरी फरमा। हम सबको दीन और दुनिया की भलाई अता फरमा, दुनिया और आखिरत की कामयाबियां अता फरमा, जमीन और आसमान में मौजूद हर चीज के शर से अल्लाह तेरी पनाह मांगते हैं, हमें अपनी अमान और पनाह अता फरमा। अल्लाह अपना फक्र अता फरमा, अपना तवक्कल अता फरमा, अपनी मार्फत अता फरमा। अल्लाह हमें सब्र और शुक्र अता फरमा।
ہمارے ظاہر و باطن میں جو دکھ تکلیفیں بیماریاں مصیبتیں بلائیں پریشانیاں ہیں اپنی شان کریمی سے دور فرما دے اللہ اپنے کرم سے دور فرما دے اس محفل پاک کی برکت سے دور فرما دے کل امت مسلمہ کی خیر فرما عالم اسلام کی خیر فرما مسلمان ملکوں علاقوں سرحدوں کی خیر فرما اللہ اول و آخر ظاہر و باطن خیر ہی خیر فرما دے ہم توبہ کرتے ہیں اپنے بری عادتوں سے بری خصلتوں سے گناہوں سے جو ہم نے جان بوجھ کے کیے یا انجانے میں ہو گئے اللہ ہماری توبہ قبول فرما ہم شرمندہ ہیں اپنے عملوں سے اللہ ہماری توبہ قبول فرما معافی عام فرما ہمیں اپنے برے عملوں کو سدھارنے کی ہمت طاقت توفیق وسائل اور اسباب عطا فرما اللہ ہم رجوع کرتے ہیں ہمیں سیدھا رستہ دکھا دین اسلام والا رستہ صالحین والا رستہ یا اللہ ہم پر اپنا کرم عطا فرما ہمیں حق سچ کہنے کی سننے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو کسی کی حق تلفی کر دی توبہ کرتے ہیں رجوع کرتے ہیں اللہ ہمارا معاملہ ہدایت والا فرما دے ہمارا معاملہ اصلاح والا فرما دے اللہ ہمیں اپنے خزانہ غیب سے مدد عطا فرما کہ جس کسی کی بھی حق تلفی کی ہو اللہ وہ ہم حق عزت سے ادب سے محبت سے معافی مانگتے ہوئے اس کی خدمت میں پیش کر دیں اللہ قبول و مقبول فرما ایسا کرم عطا فرما جو ساتھی ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں اللہ ان کی حاجات پوری فرما کسی کو کورٹ کچہری کا امیگریشن کا معاملہ ہے اللہ اپنے خزانہ غیب سے مدد عطا فرما اللہ کوئی بے روزگار ہے اس کے رزق حلال میں برکت خیر اضافہ اور اہتمام و انتظام عطا فرما کسی کا کاروبار ہے اللہ اس میں برکتیں وسعتیں ترقیاں عطا فرما جو پریشان حال ہیں گھر کے کسی فیملی ممبر کی وجہ سے خصوصاً بچوں کی وجہ سے اللہ ان کے بچوں کو ہدایت والا بنا دے جس ولی کامل نے جس مرد کلندر نے ہمیں حق اور سچ کی راہ دکھائی آپ کے درجات اعلیٰ ترین فرما ہمارے مرشد کریم کے درجات اعلیٰ ترین فرما ہمارے والدین کے ہمارے مشائخ کے ہمارے اساتذہ کے اللہ درجات اعلیٰ ترین فرما حضور میاں صاحب مبارک کو عمر خضری عطا فرما حضور مبارک صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کا فیض پوری دنیا میں عام فرما سب ان تمام ولیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما پھر دعا ہے اللہ ہمیں جتنا بھی تو نے ادا کر رکھا ہے اس میں خیر اور برکت رکھ دے ہمیں ہمت دے طاقت دے توفیق دے کہ ناجائز کمائی پر ہم انکار کر دیں کہ نہیں چاہیے برے مال سے ہم انکاری ہو جائیں ہاتھ پیچھے کر لیں کہ یہ برا مال یہ ایزی منی نہیں چاہیے اللہ ہمیں محنت کرنے کی حلال رزق کمانے کی ہمت طاقت اور توفیق عطا فرما ہم اپنے بچوں کو حلال نوالا کھلائیں ایسا کرم عطا فرما ہمارے بیوی بچوں کو ہمارے ساتھ محبت کرنے والا وفادار بنا دے اللہ ہم ایک دوسرے کا احساس بھی کریں ایک دوسرے سے محبت بھی کریں ایک دوسرے کا ادب بھی کریں ایک دوسرے کی قدر بھی کریں الہی انت مقصودنا ورداک مطلوبنا آتنا محبت ذاتک ومعرفت صفاتک آمین صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آپ سب ساتھیوں کو آج کی محفل بہت مبارک ہو جی اللہ پاک تمام دعاؤں کو آپ کے حق میں بھی قبول و مقبول فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ